Hello, guys, once again. I'm back with another explanation of a poem, The Voice of the Rain, from class 11th. And in this video, we are going to cover the explanation of a poem, literary devices, important word meanings, and the most important MCQ questions with their answers. Because in previous year, there had been asked so many questions from this poem, so we are going to discuss this poem. So first of all, we will have to start this poem. And who art thou, said I to the soft falling shower, which strained to tell, give me an answer, as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. So the important word meanings of this poem are who art thou? That means who are you? Eternal, that means never ending. Impalpable, which cannot be described. Explanation of the poem. In the above lines, the poet asked the soft following shower, who are you? To which the rain replied in a strange, two-state manner. The rain said that it was the poem of the earth, and it rose continuously from the land and bottomless ocean in the form of vapors. In the above lines, जो पोएट होते हैं वो सॉफ्ट फॉलोइंग शावर दैट मीन्स रेन से पूछते हैं कि आप कौन हो, जिसके जवाब में मीन्स रेन जो है वो बिल्कुल विचित्र रूप से जवाब देती है और कहती है कि मैं इस धरती की कविता हूँ और मैं प्रत्येक दिन मीन्स बॉटमलेस ओशियन और लैंड से वाटर वेपर के रूप में मीन्स भाप के रूप में ऊपर उठती हूँ. The next stanza, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. I descend to lap the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them, without me, were seeds only latent, unborn. The important word meanings of these stanzas are whence, that means where, vaguely means not clearly, descend, that means come down, lap, that means was, or you can say path, atomics, that means you can say small particles, latent, that means hidden, or you can say buried. Explanation of the poem. The rain tells the poet that it rises upward towards the sky in the form of vapor, where it changes its form. वर्षा जो है वो कहती है कि वह वाटर वेपर के रूप में मीन्स अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर स्काई की तरफ मीन्स उड़ती है, ऊपर जाती है और वहाँ पे अपनी अवस्था को बदल लेती है. इट ऑल्सो सेज दैट ऑल्दो इट्स फॉर्म गेट्स चेंज इट स्टिल रिमेन्स द सेम. वो ये भी कहती है कि चाहे उसकी आकृति क्यों ना बदल जाए लेकिन वो फिर भी वर्षा ही रहती है, फिर भी वो पानी ही रहती है. द रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्रॉट्स एंड प्रोवाइड वाटर. जब वर्षा नीचे की ओर आती है तो बहुत सारे मीन्स गंदगियों को, बहुत सारे मीन्स ड्रॉट्स को मीन्स साफ कर देती है और क्या करती है, हमें वाटर देती है. इट ऑल्सो वॉशेस अवे द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. और वो ये भी कहती है कि वह पृथ्वी पे ऊपर से जितने भी छोटे छोटे डस्ट होते हैं, जो कण होते हैं, उन्हें भी वो क्या कर देती है, पृथ्वी के सरफेस से साफ कर देती है. एंड द सीड इनसाइड द अर्थ ग्रो इनटू अ प्लांट. और वो ये कहती है कि जब वो नीचे गिरती है तो पृथ्वी पे मौजूद मीन्स जो सीड होते हैं पृथ्वी के अंदर, उन्हें वो क्या करते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं, प्लांट बनने में मदद करते हैं. बिकॉज ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड बाय द रेन इट गिव्स लाइफ टू द सीड. और जब वो वैसा मीन्स प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करवाती है तो वो उन्हें एक तरह से क्या देती है, नया जीवन देती है. And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For the song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns. What meanings of this important stanza? Ragged or unragged means it means whether cared for or not cared for. It doesn't affect the rain nor the poet if someone listen to the rain or not. Ragged or unragged का मतलब होता है कि चाहे उसकी कोई परवाह करे या ना करे, इससे किसी प्रकार का कोई फर्क ना तो वर्षा को होती है और ना ही हमारे कवि को होता है. चाहे
मीन्स पोएट की बातों को कोई सुने या ना सुने, या फिर वर्षा की बूंदों के बारे में कोई कुछ बोले ना बोले, उसे किसी प्रकार से कोई भी परवाह नहीं है. नाउ यू आर गोइंग टू मीन्स एक्सप्लेन द stanza. The rain says that by day and night it provides life, care, enrichment and water to the place from where is originated. वर्षा कहती है चाहे दिन हो या रात हो, वो क्या करती है मीन्स जीवन प्रोवाइड करती है, परवाह करती है सभी की, और अपने खुद के ओरिजिन को एक नया जीवन देती है जहाँ से वर्षा का उद्गम हुआ है. जैसे कहने का मतलब है वर्षा कहाँ से, आखिर उनका ओरिजिनेटर कौन है. सबसे पहले तो पृथ्वी में जो पानी रहता है वो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है वेपर के रूप में, और फिर से वह वाटर बन के वर्षा के रूप में पृथ्वी पर ही आती है और पृथ्वी को एक नया जीवन देती है. इसलिए मीन्स वर्षा कह रही है कि मैं अपने खुद के ओरिजिन को एक नया लाइफ देती हूँ. द रेन कीप्स इन्हांसिंग द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ द अर्थ बाय प्रिपेयरिंग अ लाइफ साइकिल ऑफ इटसेल्फ अगेन. जो वर्षा होती है वो क्या करती है, पृथ्वी को खूबसूरत बनाती है, उसे शुद्ध करती है और एक लाइफ साइकिल बनाती है जिससे पृथ्वी को जो लाइफ है वो फिर से मिल सके. एक साइकिल की तरह काम करती है. पृथ्वी से ही उठती है, फिर बादलों में जाती है, बादल बनती है, फिर कंडेंसेशन होके फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में पृथ्वी पे ही आ गिरती है. तो इट्स मीन्स इट मेड द लाइफ मीन्स साइकिल. The rain is like a song that originates from its birthplace, just like the heart of the singer, and travels to fulfill the earth's needs and wonders. वर्षा जो होती है मीन्स जो ओरिजिनेट होती है, जिसका बर्थ प्लेस होता है वो पृथ्वी से ही होता है. जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ द सिंगर, जैसे एक गाने का मीन्स ओरिजिन होता है एक सिंगर के द्वारा, उसके दिल के से. एंड ट्रेवल्स टू फुलफिल द अर्थ नीड्स एंड वॉन्डर्स, और पृथ्वी की सारी ज़रूरतों को क्या करती है वर्षा, पूरा करती है. इट फाइनली कम्स बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, और फाइनली उसी जगह पे आ जाती है जहाँ से उसका उद्गम होता है. Whether it is ruined or not, it returns to the original position with a lot of love to its birthplace. चाहे वो मीन्स ruined हो या ना हो, चाहे वो बर्बाद हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसे. वह जहाँ से उसका ओरिजिन होता है वहीं पे फिर वो वापस लौट जाती है और उसे ढेर सारा प्यार भी मिलता है. अब नाउ इस पोएम के कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानेंगे. जैसे द फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इन दिस पोएम इज पर्सोनिफिकेशन. द पोएट यूज्ड अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग इन द पोएट. अब पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है इस पोएम में. तो सबसे पहला मीन्स पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस जिसका यूज़ किया गया है, जहाँ पे कवि जो रहते हैं वो नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के रूप में दिखाते हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेट द वॉइस ऑफ द रेन. और वॉइस ऑफ द रेन क्या कह रही है, वॉइस ऑफ द रेन इज़ द नॉन लिविंग थिंग, बट मीन्स पोएट क्या करते हैं उसे एक लिविंग थिंग के रूप में दिखाते हैं और कहते हैं कि मीन्स वर्षा कह रही है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं धरती की कविता हूँ. तो यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में दिखाया गया है. दैट्स द रीज़न यू कैन से द पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन दिस पोएम इन दिस लाइन. नाउ the next literary device is metaphor, an indirect comparison between the qualities of different things. अब एक मेटाफर का यूज़ किया गया है, एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है जिसमें एक अप्रत्यक्ष रूप का कंपैरिजन किया जा रहा है दो चीज़ों के बारे में, दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में जिसकी क्वालिटीज़ अलग अलग है. जैसे कि आप देख सकते हो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, रेन इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू अ पोएम. अब रेन का कंपैरिजन एक पोएम के साथ किया जा रहा है, एक सॉन्ग के साथ किया जा रहा है. तो दैट मीन्स देयर आर two different kind of things and their qualities is totally different, but an indirect comparison is happening between the rain and a poem. Now the next literary device is hyperbole, exaggerated statement. ऐसे statements जिनको आंकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो वैसे statements का भी यूज़ किया गया है. that means hyperbole का यूज़ किया गया है. in this poem you can see a word bottomless sea. bottomless sea, that means you cannot measure that particular sea. That's the reason you can say there has been used a metaphor, means hyperbole, bottomless sea. Now the next literary device is imagery, visual description of something. जैसे कि कहने का मतलब है, इमेजरी का मतलब होता है कि अगर आप किसी वर्ड को सुनते हो, अगर आप कुछ ऐसी बातों को सुनते हो जिसे सुन के आपके दिलो दिमाग में कुछ कल्पनाएं आनी स्टार्ट हो जाती, यू आर इमेजिनिंग समथिंग. तो
उसी तरह से कुछ वर्ड ऐसे भी है इस पोएम में जिसको सुन के हमारे दिमाग में कल्पना सी होने लगती है, जैसे कि सॉफ्ट फॉलोइंग शावर। सॉफ्ट फॉलोइंग शावर का मतलब मीन्स एक कोमल सा रेन जो नीचे की ओर गिर रहा है। दैट मीन्स उसे सुनने के बाद इस वर्ड में हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन बनना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स द रीज़न पोएट हैज़ बीन यूज दिस लिटरेरी डिवाइस एज अ इमेजरी। नाउ इस पोएम को हम लोग जान गए फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, MCQ क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन। अब आप सभी लोगों को पता है कि द वॉइस ऑफ द रेन ये किन दो लोगों के बीच में बातें हो रही है, पोएट एंड द रेन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलोइंग शावर। जो हमारे पोएट होते हैं वो सॉफ्ट फॉलोइंग शावर से क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं हु आर यू। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू। अब रेन जो है वो पोएट के क्वेश्चन हु आर यू का जवाब क्या देती है, वो कहती है कि सी इज द पोएम ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट सी कैन नॉट बी टच्ड। रेन जो है वो पोएट को ऐसा क्यों कहती है कि उसे कोई भी नहीं छू सकता। वो इसलिए ऐसा कहती है बिकॉज सी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वो ऊपर की ओर उठती है वाटर वेपर के रूप में। दैट मीन्स भाप के रूप में, इसलिए वो ऐसा कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वैसी कौन सी दो जगह है जहाँ से मीन्स वर्षा है वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर उठती है। तो सिंपल सा आंसर है इसका लैंड एंड बॉटमलेस सी, पृथ्वी और मीन्स ऐसा समुद्र जिसे मीन्स मेजर नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स लैंड एंड द बॉटमलेस सी। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens to the earth when the rain falls back on the surface of the earth। क्या होता है जब वर्षा मीन्स फिर से पृथ्वी के सरफेस पे वापस लौट आती है। तो जब वो पृथ्वी के सरफेस पे फिर से वापस लौट आती है तो इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ। वो पृथ्वी को खूबसूरत बना देती है और उसे पूरी तरह से प्योर कर देती है, शुद्ध कर देती है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ। रेन जो है वो किस तरह से पृथ्वी के अंदर उपस्थित बीजों की मदद करती है। तो रेन क्या करती है, इट प्रोवाइड्स द लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो। मीन्स वह पृथ्वी के अंदर उपस्थित बीजों को मीन्स लाइफ देती है और उन्हें बढ़ने में मदद करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द रेन डू व्हेन शी डजंट केयर इफ एनीवन बॉदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट। मीन्स रेन क्या करती है जब उसे कोई भी परेशान नहीं करता, जो उसके बारे में कोई कुछ बातें करता है नहीं करता है, तो वो क्या करती है, वो करती है बस शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम। मतलब वो अपना काम करती है और फिर से अपने घर वापस आ जाती है। डैट मीन्स पृथ्वी से वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाती है, बादल बनती है, फिर पानी बन के वर्षा बन के नीचे ज़मीन पे आ जाती है और लाइफ को मीन्स अर्थ को लाइफ प्रोवाइड करवाती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है, पृथ्वी को शुद्ध करती है, ब्यूटीफाई करती है। सो अपना काम वो करती है और फिर से घर वापस आ जाती है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ। अब यहाँ पे हमारे पोएट जो है वॉट विटमैन वो रेन की कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, तो रेन का कंपैरिजन इस पोएम में सॉन्ग के साथ किया जा रहा है। व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विद द सॉन्ग। अब देखिए पोएट जो है वो रेन का कंपैरिजन सॉन्ग के साथ क्यों करते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी। जैसे कि मीन्स दोनों जो है रेन और सॉन्ग वो दोनों का एक कॉमन सा जर्नी है। जैसे मीन्स एक सिंगर के हार्ट से जब गाना निकलता है तो वो लोगों के दिमाग तक आता जाता है और उनके माइंड को टोटली मीन्स वॉश आउट कर देता है, अच्छा बना देता है, मूड उनका फ्रेश कर देता है। और उसी तरह से पानी जो है वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाती है, फिर क्लाउड्स बनती है और फिर नीचे आ जाती है और पृथ्वी को एक नया जीवन देती है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक कॉमन सा जर्नी को शेयर कर रहे हैं। दैट्स द रीज़न पोएट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द रेन विद द सॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ओरिजिनेट। अब सॉन्ग जो है वो कहाँ से आता है, वो आता है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर। वह सिंगर के हार्ट से गाना निकलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पोएट हैज़ यूज द मेटाफर इन द पोएम व्हाट इज इट। अब देखिए अगर इस पोएम में मीन्स पोएट मेटाफर का यूज़ किया है तो वो कौन सा मेटाफर है, वो मेटाफर है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हाइपरबोल वाज यूज्ड इन द पोएम। अब इस पोएम में एक हाइपरबोल का भी यूज़ किया गया है जो है आपका बॉटमलेस सी, जिसे कोई भी काउंट मेजर नहीं कर सकता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द रेन इन द स्काई। अब जब मीन्स रेन जो स्काई में जाती है तो क्या होता है, इट फॉर्म क्लाउड्स, वो बादल बन जाती है, बादल बनाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड डिसेंड मीन। अब डिसेंड का मतलब क्या होता है, तो डिसेंड का मतलब होता है कम डाउन, दैट मीन्स नीचे की ओर आना। जब वर्षा की बूंदे मीन्स बादलों से निकलती है तो नीचे की ओर ही आती है, दैट्स द रीजन द वर्ड डिसेंड इज यूज्ड इन दिस पोएम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि पानी जो है, वर्षा जो है वो पृथ्वी की ओर क्यों आती है। तो पृथ्वी की ओर पानी क्यों आती है, टू वॉश द ड्रॉट्स एंड प्रोवाइड वाटर, गंदगियों को धो देती है, सूखों को खत्म कर देती है और हमें क्या देती है, पानी प्रोवाइड करती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू वॉश द ड्रॉट्स एंड प्रोवाइड वाटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज रेक्ड और अनरेक्ड मीन। अब रेक्ड और अनरेक्ड का मीन क्या होता है, तो रेक्ड और अनरेक्ड का मीनिंग होता है चाहे उसकी कोई परवाह करे चाहे उसकी कोई परवाह ना करे, इट डजेंट मैटर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, cared for or not cared for. Now the next question is where does the song return in the poem। अब सॉन्ग जो है वो मीन्स जब गाना बनती है तो फिर से वापस कहाँ लौट जाती है, टू इट्स ओरिजिनेटर, दैट मीन्स सिंगर के दिल में फिर से वो वापस आ जाती है। दैट मीन्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हु आर्ट थाउ। अब हु आर्ट थाउ का मतलब पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्ड मीनिंग्स में, इसका मतलब होता है सिंपल सा हु आर यू, तुम कौन हो। Now the last question of this poem, who is the poet of the poem The Voice of the Rain। The Voice of the Rain के poet कौन है, तो इस poem के मीन्स poet है हमारे कवि वॉट विटमैन। So hope you have understood this one and if you have any doubts then you can ask me.